رات بہت گہری ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ ہر روز کی طرح آج بھی میں پانی کا گلاس پی کر سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر کئی دن سے لگی بھوک کے سامنے آج تو میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں بھوک سے نڈھال روٹی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ اس بھوک نے آدھی رات کو گھر سے باہر قدم نکالنے پر بھی مجھے مجبور کر دیا۔ میں روٹی کی تلاش میں اپنے خستہ حال گھر سے نکلی تھی اور اپنے ارد گرد چھائے ہوئے گھنے اندھیرے کو دیکھتے ہوئے اچانک مجھے خوف آنے لگا۔ میں نے گھبراتے ہوئے اپنے قدم روک لیے۔ بھوک کی شدت اتنی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس میرا جی چاہ رہا تھا کہ کہیں سے بھی مجھے کھانے کو کچھ مل جائے، مگر بہت ڈھونڈنے پر بھی مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ میں زاروں قطار رونے لگی۔ میں اپنی بے بسی پر سوائے رونے کے اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ صبح سے شام اور شام سے رات ہو جاتی، مگر کسی کو بھی مجھ پر رتی برابر ترس نہیں آتا۔ گاؤں والے مجھے ایسے بھوکا بلکتا دیکھتے ہوئے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے۔ آج مجھے اپنی زندگی میں کیے گئے تمام گناہوں کی سزا مل رہی تھی۔ ایسے لگتا کہ چن چن کر لوگ مجھے سزا دے رہے ہوں۔ میں نے ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن سوائے دھتکار کے مجھے کہیں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ لوگ تو مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اچھوت کی بیماری سمجھتے ہوئے ہر کوئی مجھ سے دور بھاگتا دکھائی دیتا، اور میرے منہ پر دروازہ بند کرنے میں بھی کوئی نہیں جھجکتا تھا۔ میں سڑکوں پر ماری ماری ساری رات بھٹکتی رہی، لیکن مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ میں بے یار و مددگار غموں کی ستائی گرتی سنبھلتی واپس اپنے گھر تک آ پہنچی۔ بھوک کی وجہ سے مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میں نڈھال بے ہوشی کی حالت میں چارپائی پر گر پڑی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ہوش میں لایا گیا۔ میں نے اپنے ارد گرد گاؤں کے لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ یہ ہجوم دیکھتے ہوئے میرے دل میں امید کی ایک کرن سے جاگ اٹھی کہ شاید گاؤں والوں کو مجھ پر ترس آ گیا ہو اور کوئی میرے لیے روٹی کا انتظام کر دے۔ بھوک کی وجہ سے مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اس کمزوری کی وجہ سے میں بہت نڈھال ہو چکی تھی۔ جیسے گاؤں والوں نے مجھے ہوش میں آتے دیکھا تو سب لوگ مجھ سے دور ہٹنے لگے۔ میں ان سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن بھوک کی وجہ سے میرے الگ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے لاچاری میں اشارہ کرتے ہوئے لوگوں سے کچھ کھانے کو مانگا، لیکن سب لوگ مجھ سے نفرت کا اظہار کرتے مجھ سے دور جانے لگے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کسی کو میرا رونا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سب لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے، اور اسی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے سب لوگ مجھے گھر میں تنہا چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتی، کسی کے آگے اپنا رونا روتی، کسی کو اپنی مجبوری بتاتے ہوئے کچھ کھانے کو مانگ لیتی۔ میں جانتی تھی کہ چاہے میں کتنی بھی کوشش کر لوں، گاؤں والوں کا دل میرے لیے کبھی صاف نہیں ہوگا۔ گاؤں والے کبھی بھی میری مدد نہیں کریں گے۔ مجھے یہ بات بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ چاہے میں کتنی ہی اچھی ہونے کا دعویٰ کروں، گاؤں والوں کے دلوں میں کبھی بھی میرے لیے رحم پیدا نہیں ہوگا۔ میں ہمیشہ ان کی نفرت بھری نگاہوں کی حقدار بنی رہوں گی۔ میرے گناہ کبھی بھی کسی کو میرا ماضی بھولنے نہیں دیں گے۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے گاؤں والوں سے آس لگانا چھوڑ دی تھی۔ میں بے یار و مددگار لاچار اپنے خستہ حال گھر میں بیٹھی کمزوری کی وجہ سے کپ کپ آ رہی تھی۔ مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے سجدے میں سر رکھتے ہوئے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ایسے لگتا تھا کہ میرے دل کے چھالے آج پھٹ چکے تھے۔ میں اپنی تکلیف میں اس قدر اونچی رو رہی تھی کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ آج مجھے اپنے کیے گئے ہر گناہ پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے پروردگار کے حضور سجدے میں اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ زاروں قطار روتے ہوئے میں اپنے پروردگار سے یہی کہہ رہی تھی کہ تو رحیم ہے، کریم ہے۔ میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں، تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ تو اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف فرما دے۔ میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، میری مجبوری اور لاچاری کی طرف دیکھ۔ میں ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کر رہی تھی، اے خدا، میں تو تیری ہوں اور تیری ہی بنائی گئی بندی ہوں۔ میں مانتی ہوں کہ مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوئے، لیکن میں اپنے گناہوں کی آج معافی مانگتی ہوں۔ مجھے معاف کر دے، میرے لیے آسانیاں پیدا کر۔ میں بھوکی پیاسی در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پتھر میں چھپے کیڑے کو بھی تو بھوکا نہیں رکھتا۔ میں تیری بندی ہوتے ہوئے کئی دن سے بھوکی کیوں؟ میرے اوپر اپنی نظر یہ کرم کر دے اور مجھے گناہوں کی سزا ایسے مت دے۔ مجھے معاف کر دے میرے پروردگار۔ میں زاروں قطار رو کر دعا مانگتی رہی کہ تبھی مجھے کمرے میں دھواں سا اٹھتا دکھائی دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں میں دھواں پورے کمرے میں پھیل گیا۔
मुझे कोई भी चीज़ ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। कमरे का पूरा माहौल आलूदा सा हो गया। खौफ के मारे मेरे कंधे वजनी होने लगे थे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर अपने कमरे से ही बाहर निकल जाऊं। कुछ भूख ने निढाल कर रखा था तो कुछ खौफ के मारे मेरी जान हथेली पर आ गई। मैं अपने इर्द गिर्द का माहौल देखते हुए बहुत खौफजदा हो गई। उसी खौफ में मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने घर में एक अजीब सा मुआजिज़ा देखा। एक ऐसा मुआजिज़ा जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। मेरे करीब एक बहुत बड़ी खजूर पड़ी थी। खजूर को देखते ही मैं अपनी भूख पर काबू नहीं रख सकी। मैं बेधड़क खजूर खाने लगी। होश तो तब उड़े जब खजूर ख़त्म होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। मैंने पेट भर कर खाने के बाद इस बात पर गौर किया कि आखिर ये खजूर ख़त्म क्यों नहीं हो रही। गौर करने पर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं परेशान होने के साथ खौफजदा भी होने लगी। तभी मैंने अपने करीब देखा। मेरा नाम मलाइका है। मैं एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अब्बा गवर्नमेंट के एक मामूली से क्लर्क थे और अम्मा घरेलू खातून थी। अब्बा की आमदन इतनी नहीं थी कि घर का गुजर बसर आसानी से हो पाता। अम्मा अक्सर ही अब्बा से कहती कि आपकी आमदन से घर का गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता है। किराए का घर है, आपकी तनख्वाह तो किराए और बिल्लों में ही चली जाती है। खाना पीना बहुत मुश्किल से हो पाता है। आप और लोगों की तरह ऐसा कुछ क्यों नहीं करते जिससे घर में रिस्क की फरावानी होने लगे। अम्मा का इशारा 2 नंबर काम की तरफ होता और अब्बा ठहरे नमाजी परहेजी। उन्हें रिश्वत से सख्त एलर्जी थी। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिसमें रिश्वत के पैसे की ज़रा से भी मिलावट होती। अम्मा अब्बा की शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने औलाद की खुशी से उन्हें नवाजा था। जब मैंने उस घर में आँख खोली तो मैं नहीं जानती कि घर के हालात कैसे थे। जैसे जैसे बड़ी होती चली गई वैसे वैसे मुझे घर के हालात के बारे में इल्म होता गया और मैं अपने जहन में तरह तरह की बातें सोचती रहती। मुझे पढ़ने का बेहद शौक़ था। बचपन से ही मैं बहुत ज़हीन और लायक थी। अब्बा ने करीब के एक स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया। मैं अपनी हर क्लास में अव्वल नंबर पर आती। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मैं हमेशा अव्वल पोजीशन हासिल करते अपनी पढ़ाई की मंजिल तय करती गई और आखिरकार मैंने मैट्रिक का इम्तिहान भी अच्छे नंबरों में पास कर लिया। अब मुझे यूनिवर्सिटी लेवल पर अपनी अगली तालीम को जारी रखना था। अब्बा ने अपनी हैसियत से बढ़कर मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दिया। मैंने वहाँ पर अपनी तालीम को जारी रखे हुए BBA का इम्तिहान भी अच्छे नंबरों में पास कर लिया। बचपन से ही मैंने अपने घर गुर्बत और मुफलिसी के हालात बहुत अच्छे से महसूस किए थे। बचपन से ही मेरे दिमाग में एक बात घर कर गई थी कि गरीब की कोई ज़िंदगी नहीं होती। जहाँ से जो मिलता है उसे छीन लेना चाहिए, अपना हक छीन कर हासिल करना चाहिए। ज़िंदगी तो अमीरों की होती है जिन्हें बिना मांगे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की हर आसाइश दे रखी है। क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी इसलिए मैं उनकी बहुत लाडली भी थी। अब्बा मुझसे बेहद मोहब्बत करते। मेरी हर बात को अब्बा मेरे मुंह से निकलने से पहले ही पूरा कर देते। मुझे अच्छे स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़ने का शौक़ था। अब्बा ने दिन रात एक करके मेरे शौक़ को पूरा किया। डिग्री हासिल करने के बाद अब मैं कहीं जॉब करना चाहती थी। मेरे पास अच्छी डिग्री थी। हमारा आबाई घर गांव में था। शादी से पहले ही अब्बा अपनी जॉब के सिलसिले में शहर आ बसे थे। शहर में एक हमारा छोटा सा किराए का घर था। बचपन से ही मैं अम्मा और अब्बा के दरमियान एक जंग छिड़ते देखती चली आ रही थी और वो जंग दौलत की थी। आज फिर अम्मा बेहद गुस्से में थी। घर के बर्तन उठा उठा कर मारते हुए अम्मा ने मुझे भी खूब अच्छी तरह से डांट डपट दिया। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि आज कुछ ऐसा हुआ है। अम्मा ने ज़रूर कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से अम्मा आज बेहद गुस्से में है। मैं मुस्कुराते हुए अम्मा से कहने लगी कि लगता है आज अब्बा की खैर नहीं है। अम्मा, आज फिर से आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? ये कहते हुए मैं अपने कमरे में जाने लगी थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा ने चीखते हुए मुझे आवाज़ दी, अरे ओ मलाइका, बाहर देखो, तुम्हारे अब्बा आए, जाओ और जाकर दरवाज़ा खोलो। अम्मा, मैं तो अब गर्मा गर्म बिस्तर में घुस आई हूँ, मुझसे नहीं जाया जाता, आप खुद खोल दें। मैंने बेजारी के साथ अम्मा को आवाज़ देते हुए कहा। अम्मा गुस्से से भरी चीज़ें पटकती हुई जाकर दरवाज़ा खोलने लगी। अब्बा अम्मा का बदला हुआ रंग रूप देखकर परेशान से हो गए। अब्बा घर में दाखिल हुए और अम्मा से कहने लगे, अरे भाई, सब खैरियत तो है क्या? आज फिर तुम्हारी लाडली बेटी ने तुम्हें तंग किया है क्या? अब्बा अम्मा की तरफ मुस्कुराते हुए ये सब कहते घर के अंदर ही आ रहे थे
جب اماں نے اپنی ساری بڑھاس ابا پر نکالتے ہوئے کہا، جی ہاں، لاڈلی بیٹی اور لاڈلے شوہر کے ہاتھوں میں تو واقعی بہت تنگ ہوں، نہ جانے میری زندگی میں سکون کب آئے گا۔ ابا اپنا چھوٹا سا بیگ اماں کو تھماتے ہوئے کہنے لگے، ارے بیگم کیسی باتیں کرتی ہو، مرے تمہارے دشمن، ارے میں نے یہ مرنے ورنے کی بات کب کی؟ ابا اپنے چہرے پر مسکراہٹ کو ظاہر کرتے ہوئے اماں سے کہنے لگے، تمہارا اگلا ڈائلاگ تو یہی ہونے والا تھا، اسی لیے میں نے ایڈوانس میں تمہیں یہ سب کچھ بول دیا۔ اب آپ کو میری باتیں ڈائلاگ لگتی ہیں؟ اچھی زندگی کے بارے میں سوچنا، اچھا لائف سٹائل چاہنا، یہ سب بہت بڑا گناہ ہے نا آپ کے نزدیک؟ اماں تلخی بھرے لہجے میں ابا سے کہتے ہوئے کچن کی طرف جانے لگی۔ ابا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے کہنے لگے، آج کیا کوئی گھر پر آیا تھا؟ تمہاری اماں کا دماغ بہت گرم ہے۔ میں خاموشی سے لیٹی اماں اور ابا کے درمیان ہوتی اس جنگ کو اپنے گرما گرم بستر میں لیٹے ہوئے دیکھ رہی تھی اور خوب انجوائے کر رہی تھی۔ اماں اپنے ہاتھ میں ایک کپ گرم گرم چائے لی ابا کے سامنے حاضر ہوئی۔ چائے ابا کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اماں نے کہا، آپ کو کچھ خبر ہے؟ میری سہیلی آبدہ آج مجھ سے ملنے آئی تھی۔ ابا چائے کی ایک چسکی لیتے ہوئے اماں سے کہنے لگے، ہاں وہ تمہارا بدلا ہوا رویہ بتا رہا ہے کہ آج تمہاری قریبی اور سب سے پیاری سہیلی آبدہ ہی گھر سے اکر گئی ہے۔ مذاق مت کریں، میں آپ سے سیریس بات کر رہی ہوں اور آپ ہو کہ میری ہر بات کو مذاق میں اڑا دیتے ہو۔ اماں کا غصہ دیکھتے ہوئے ابا نے کہا، اچھا بابا اب میں کچھ نہیں کہتا، بولو تمہیں کیا بولنا ہے؟ میں تو آبدہ کے تیور ہی دیکھ کر حیران رہ گئی، آج وہ یہ لمبی چوڑی کار پر بیٹھ کر آئی تھی۔ ارے میں تو کہتی ہوں کہ اس کا شوہر بھی تو آپ کی طرح معمولی سا کلرک ہی ہے، لیکن اس کے شوہر نے آبدہ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ وہ بتا رہی تھی کہ اس محلے سے ہٹ کر اس نے اپنا ایک نیا گھر خریدا ہے، اور جیسا وہ بتا رہی تھی مجھے تو کوئی محل ہی لگ رہا تھا، گاڑی، نوکر چاکر، ہر سہولت اس کے شوہر نے اسے دی ہے۔ میں پوچھتی ہوں آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے اتنا آگے نکل گئے وہ، پھر آپ کی اور ہمارے لیے زندگی اتنی مشکل کیوں ہے؟ آپ کیوں آبدہ کے شوہر کی طرح کوشش نہیں کرتے؟ اماں مایوسی اور غصے کے ساتھ ابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو میاں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بھی زندگی کو خوبصورت انداز میں گزاروں، ساری زندگی ہو گئی ہے اس طرح آپ کے ساتھ سسک کر زندگی گزارتے۔ اب اگر آپ کو کوئی ایسا چانس مل رہا ہے جس سے آپ مجھے ایک اچھا لائف سٹائل دے سکتے ہو تو آپ کیوں کر اس چانس کو نہیں اپناتے؟ کیا آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ ابا خاموشی سے اماں کی ساری باتیں سنتے رہے۔ اماں کی بات مکمل ہونے کے بعد ابا نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اماں سے کہا، دیکھو صفیہ بیگم، میں نہیں جانتا کہ آبدہ کا شوہر راتوں رات کیسے امیر ہو گیا، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ جس چانس کے بارے میں تم بات کر رہی ہو اس میں دین اور ایمان کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ رشوت لے کر میں اپنی ساری زندگی کی اچھائیوں پر پانی نہیں پھیر سکتا۔ ارے لوگوں کو تو مرنا بھولا ہوا ہے، وہ نہیں جانتے کہ جو کام اس دنیا میں کر رہے ہیں اس کا ازالہ اگلے جہاں میں جا کر بھرنا پڑے گا، اور تم ایک ایسی چنگاری کی خواہش کر رہی ہو جو میرے پورے گھر کو آگ لگا دے گی۔ ارے واہ، اماں ابا کی بات پر سر پٹکتے ہوئے بولی۔ تبھی موقع غنیمت سمجھتے ہوئے میں ابا کو چار باتیں میں بھی سنانے لگی۔ ابا، ویسے اماں کہہ تو ٹھیک ہی رہی ہیں، آپ نے ساری زندگی اچھائی اور نیکی سے کام کر کے آخر کیا حاصل کیا ہے؟ 2 وقت کا کھانا تو اچھے سے نصیب نہیں ہوتا، اوپر سے یہ چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا کرائے کا گھر جس کا ہر مہینے کرایہ لینے کے لیے مالک مکان آ کر دروازہ پیٹتا ہے۔ میں پوچھتی ہوں، کیا جینے کا حق صرف امیروں کو ہی ہے؟ یہ امیر زادے ہم لوگوں کے کندھوں پر قدم رکھ کر ہی کامیابی کی بلندیوں کو چھوتے ہیں۔ ابا آپ ہی بتائیں، اگر ہم جیسے غریب ان کے امپلائیز نہ ہوں تو یہ لوگ امیر کیسے ہوں، کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کی وجہ سے ہی ان کے کاروبار ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں، اور یہ لوگ ہم لوگوں کی وجہ سے ایک اچھی لگژری لائف سٹائل حاصل کر پاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، میں آپ کی طرح بالکل بھی نہیں ہوں، مجھے اپنا حق چھیننا بہت اچھے سے آتا ہے۔ میں امیر کے الگ سے اپنے لیے اپنا حق چھین کر آپ کو دکھاؤں گی۔ میرے تیور دیکھتے ہوئے ابا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور اماں سے کہنے لگے، تمہاری بیٹی کے ارادے کچھ نیک نہیں لگتے، ایسے لگتا ہے کہ یہ اپنی زندگی میں اچھائی اور برائی کو ایک ہی کیٹیگری میں لے کر چل رہی ہے۔ سمجھاؤ اسے ہوش کے ناخن لے، یہ دنیا ہے کسی امیر زادے کی زندگی میں دخل دے گی تو تباہ و برباد ہوتے وقت نہیں لگے گا۔ اپنے کندھوں سے ایک پھٹی پرانی گرم شال اپنی چارپائی پر پٹکتے ہوئے ابا نے اماں سے کہا،
अब्बा हमें गांव भेजना चाहते थे, लेकिन मैं तो शहर में एक अच्छी जॉब की तलाश में थी। मैंने अब्बा को साफ मना कर दिया कि मैं गांव नहीं जाऊंगी। शहर में रहकर मुझे एक अच्छी सी नौकरी करनी है। आपने तो अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दी, मगर मैं आपकी तरह ऐसी फ़कीरों वाली ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। मुझे कुछ करना है, अपनी ज़िंदगी में भाग दौड़ में मुझे आगे बढ़ना है। इसलिए मुझे तो आप दोनों माफ़ ही रखें, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। मैंने गुस्से से रज़ाई अपने मुंह पर लेते हुए कहा। सर्दियों की रातें थी और मुझे बेहद सर्दी महसूस हो रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और न जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में चली गई। सुबह होते ही मुझे एक इंटरव्यू के लिए शहर की सबसे बड़ी कंपनी में जाना था। मैं हड़बड़ाकर उठी। एक फ़ोन कॉल पर मेरी आंख खुली थी। मैं अम्मा से कहने लगी, आप मुझे जगा ही देती, आपको पता तो था कि आज मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है और मैं बहुत लेट हो गई हूँ। एक भी ढंग का सूट नहीं था जो मैं पहनकर इंटरव्यू के लिए जाती। मैं गुस्से से सारे कपड़े ज़मीन पर गिराकर अम्मा से कहने लगी, एक भी ऐसा सूट नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी है जहाँ मुझे नौकरी मिलने जा रही है, और कपड़े देखो ऐसे हैं जिनसे साफ पता चल रहा है कि मैं किसी बहुत ही गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने बहुत ही नाक चढ़ाकर कहा। अम्मा मेरी बात सुनकर बोली, जिसका बाप शरीफ हो ना, और ऊपर से उसे हलाल और हराम का इशू हो, उसकी औलाद को ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। इतना उड़ने की ज़रूरत नहीं है मलाइका, जितना हो सके उतनी जल्दी नीचे उतरो, नहीं तो मुंह के बल तो ऐसा गिरेगी कि फिर कभी संभल नहीं पाएगी। हाय हाय अम्मा, आज के दिन तो ऐसी बातें मत बोलो। दुआ नहीं दे सकती तो बद्दुआ भी मत दे। मैं आपको अपनी किस्मत बदल कर दिखाऊंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि एक गरीब अगर अपनी किस्मत बनाने पर आए तो कैसे इन अमीर जादू से अपने हिस्से की खुशियाँ छीन कर लाता है। तेरे इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। बेहतर यही है कि तुम कभी अपनी औकात मत भूलना। तुम जो हमेशा हो वही रहोगी। अम्मा गुस्से से बोलते हुए किचन की तरफ जाने लगी। नाश्ता बना कर रखा है, जाने से पहले नाश्ता कर जाना। मैं अम्मा की बात सुनकर खामोश हो गई। कुछ पल के लिए तो मुझे भी ऐसे लगा कि अपनी किस्मत को मैं किस तरह बदल सकती हूँ। जो किस्मत मेरे बाप ने मेरे लिए लिख रखी थी, मैं उससे कैसे भाग सकती थी। अम्मा की बातें तो मेरे हौसले पस्त कर जाती। मोबाइल की बेल होने लगी। जैसे ही मैंने मोबाइल देखा तो मेरी सबसे करीबी दोस्त, सबसे अमीर सहेली की कॉल आ रही थी। हालचाल पूछने के बाद उसने मुझसे इंटरव्यू के बारे में पूछा। मैं आज उसी के अब्बा की कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाने वाली थी। नौकरी तो मेरी पहले दिन से ही पक्की थी, बस ये एक फॉर्मेलिटी थी जो मुझे पूरी करनी थी। मेरी सहेली मुझ पर जान निछावर करती। वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि मैं एक ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ पर 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है। उसकी सिफारिश पर मुझे नौकरी मिल रही थी। मैंने ख़ुद को यूनिवर्सिटी में बहुत ही अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला शो कर रखा था। मलाइका, मुझे बताओ, मुझे तुम्हें कहाँ से पिक करना है? उसकी बात सुनकर तो मेरे हाथ पांव फूलने लगे। मैं अपनी सहेली को अपने घर का एड्रेस कैसे दे सकती थी? उसे कैसे बताती कि मैं खस्ता हाल घर में रहती हूँ? यूनिवर्सिटी में बनाई सारी इज्जत खाक में मिल जाती। मैंने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं खुद ही तुम्हारे ऑफिस में पहुँच जाऊँगी। कहाँ तुम इतनी दूर से मुझे पिक करने आओगी? मैंने जल्दी से कहते हुए फ़ोन काटते हुए अपने कपड़े निकाले और तैयार होने लगी। कुछ ही देर में नाश्ता किए बगैर मैं अपनी सहेली के ऑफिस पहुंच गई। वहां जाने के बाद मुझे कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी और एक बहुत अच्छी पोस्ट पर मेरी जॉब कंफर्म हो गई। मैं बहुत खुश थी। मैं अपनी सहेली का यह एहसान कभी नहीं भूल सकती। मेरी दोस्ती लड़कियों से कम और लड़कों से ज़्यादा होने लगी थी। यूनिवर्सिटी के दौर में ही मैं ज़्यादा दोस्ती अमीर लड़कों से रखती। दोस्ती के ज़रिए अमीर लड़कों को लूटना और उनकी जेब खाली करवाना मुझे बहुत अच्छे से आता। अभी तक ये सब बातें अम्मा और अब्बा की नज़र से छुपी हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने एक बड़े ऑफिस में नौकरी करना शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा रहन सहन मुकम्मल तौर पर बदलता देखकर अम्मा अब्बा को इस बात पर शक होने लगा कि मैं ये सब अपनी तनख्वाह से कैसे कर रही हूँ। अचानक से छोटे मोहल्ले को छोड़कर एक अच्छे मोहल्ले में बड़ा सा घर, रुपया पैसा, अच्छे से अच्छे कपड़े और गाड़ी देखकर अब्बा बहुत हैरान थे। एक दिन अब्बा ने मुझे अपने करीब बिठाते हुए कहा, देखो मलाइका, तुम मेरी कुल कायनात हो। जिंदगी में कभी कुछ ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे बाप का सर शर्म से झुक गए। मुझ पर अब्बा का इमोशनल अटैक कभी असर नहीं करता था। मुझसे अब्बा की ये घिसी पटी बातें बर्दाश्त नहीं होती।
मेरा जी चाहता तो अब्बा की बात मानती, और अगर जी नहीं चाहता तो अब्बा को साफ मना कर देती और कहती कि आपने अपनी ज़िंदगी तो ऐसे ही धक्के खाते हुए गुजार दी है, अब मुझे मत सिखाएं कि मुझे कैसे जीना है। अब्बा हमेशा अम्मा से कहते हैं कि बिना परों के तुम्हारी बेटी बहुत तेज़ी से उठती जा रही है, इसे संभाल लो नहीं तो मुंह के बल गिरेगी। अम्मा और अब्बा की बातें मुझ पर कुछ असर ना करती, मैं वही करती जो मेरा जी चाहता। ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते हुए मेरी यारी दोस्तियाँ कई लड़कों से हो चुकी थी। मेरा मिलना जुलना, उठना बैठना, खाना पीना मीरजादू के साथ था। मैं ऐसी ज़िंदगी गुजारने लगी जिसमें सिवाय बदनामी के और कुछ नहीं था। मुझे रुपए पैसे के आगे कुछ दिखाई ना देता। मैं दोनों हाथों से लोगों को लूटने लगी। ऑफिस में जब मैंने अपनी सहेली के भाई पर डोरे डालना शुरू किए तो बहुत जल्दी मुझे ऑफिस से धक्के देकर निकाल दिया गया। ये मेरी पहली गलती थी। अम्मा हमेशा कहा करती थी कि गरम गरम रोटी खाने से मुंह जल जाता है। अगर खुदा ने तुम्हें इतना सब कुछ अता कर ही दिया है तो ठंडी करके खाना खाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ये सब कुछ तुम्हारे पास आया है वैसे ही निकल जाए। आज मुझे अम्मा की बात शिद्दत से याद आ रही थी। मैंने अपनी एक एक हरकत की वजह से अपनी बहुत अच्छी नौकरी खोई थी, लेकिन मैं परेशान नहीं थी क्योंकि मेरे पास कमाई करने के और बहुत सारे ज़रिए थे। अल्लाह ने मुझे बेतहाशा हुस्न दे रखा था। मैं अपने हुस्न पर मर मिटने वाले हर उस अमीरजादे को नोच कर खा रही थी जो मुझे देखे बगैर रह नहीं पाता। मोहल्ले वाले अब्बा से मेरी तरह तरह की शिकायतें करने लगे। मैं अपनी ज़िंदगी की दौड़ में इस कदर आगे निकल चुकी थी कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं कैसे पैसा कमा रही हूँ। मुझे अपनी इज़्ज़त तक की परवाह नहीं थी। मैंने अपनी इज़्ज़त को दांव पर लगाते हुए अपनी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश को पूरा करना शुरू कर दिया। मेरे घर में मर्दों का आना जाना लगा रहता। मैं अम्मा अब्बा को ये कहते हुए बेवकूफ़ बनाने लगी कि ये सब लड़के मेरे ऑफिस के कुलीग हैं, ऑफिस के काम से घर आते जाते हैं। ये बात अम्मा और अब्बा से बर्दाश्त नहीं होती थी। अब्बा ने कई दफ़ा मुझे धमकाया, मारा पीटा, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशों के साथ बहुत आगे निकल चुकी थी। मैं अब किसी के रोके से रुकने वाली नहीं थी। मुझे सिर्फ अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए था, उसके लिए चाहे फिर मेरी इज्जत ही क्यों ना चली जाती, मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं कुछ अरसे के लिए किसी अमीरजादे को फंसाती, उसे अच्छी तरह से लूटती, फिर उसे छोड़कर किसी और की तलाश में निकल जाती। एक 2 नंबर औरत की तरह मैं अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। मैंने बहुत सी शादीशुदा ज़िंदगी को अपनी ख्वाहिशात के लिए तबाह व बर्बाद किया था, इन सब बातों से बेखबर होकर कि उसका अंजाम क्या होगा। मैं कामयाबी की मंजिलें तय करती जा रही थी। अब्बा मेरी इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो एक इज़्ज़तदार इंसान थे। अब्बा अपनी नौकरी छोड़कर अम्मा को अपने साथ लेकर हमेशा के लिए गांव चले गए। ये बात शहर गांव हर जगह आग की तरह फैल गई कि महमूद साहब अपनी अकलौती बेटी की बुरी हरकतों से तंग आकर अपनी बची खुची इज्जत को लेकर गांव वापस चले गए। जिस खौफ से अब्बा शहर छोड़कर गांव जा छुपे थे, उस खौफ ने अब्बा का वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। कुछ दिन में गांव में मेरे कारनामों की कहानियाँ आग की तरह फैल गई। हर कोई अब्बा को अजीब नज़र से देखता। अब्बा किसी के एक नज़र देखने पर ही शर्मिंदगी महसूस करते और अम्मा के आगे फूट फूट कर रो पड़ते। कई दफ़ा अब्बा मेरे साथ भी फ़ोन पर बात करते रो पड़ते और कहते कि खुदा के लिए मेरी इज्जत को नीलाम मत करो, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा, तुम्हारी दी गई ये जलालत मुझे सांस नहीं लेने देती। मैं अब्बा की बातें सुनती और उन्हें बुरा भला कहकर फ़ोन काट देती। मैं उनकी किसी बात पर अमल नहीं करती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें अच्छे स्कूल, अच्छी यूनिवर्सिटी में तालीम दिलवाई, अपनी औकात से बढ़कर तुम्हारी तालीम के लिए कोशिश की। मुझे क्या मालूम था कि अमीर लोगों के साथ पढ़ते पढ़ते तुम्हारा जहन भी वैसा हो जाएगा। न जाने कहाँ कमी रह गई थी मेरी तरबियत में। आज अब्बा की बात सुनकर मुझे ये बात कुछ पल के लिए महसूस हुई कि आज अब्बा बहुत तकलीफ़ में थे। कुछ पल के लिए मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने माँ बाप के साथ ज़्यादती कर रही हूँ, लेकिन फिर अपनी ख्वाहिशों और हसरतों के आगे मुझे सब बातें फीकी लगती। काश तुम पैदा होते ही मर जाती, आज मैं तुम्हारी दी गई जलालतों की वजह से यूं मुंह छुपाए न फिर रहा होता। रोते हुए अब्बा ने कहा और गुस्से से कॉल काट दी। ये मेरे अब्बा के साथ आखिरी कॉल थी। उसके बाद अब्बा ने कभी मुझे पलट कर फ़ोन नहीं किया। वक्त ने उन्हें इतनी मोहलत ही नहीं दी थी। मेरी दी गई जलालत के आगे अब्बा ज़्यादा देर तक अपनी इज्जत लिए खड़े नहीं रह सकते थे।
उस ज़लालत को बर्दाश्त न करते एक दिन अब्बा हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कांटा निकल चुका था। मुझे अब्बा के जाने का बिल्कुल दुख नहीं था। अब्बा अक्सर मुझ पर तरह तरह की पाबंदियां लगाते, इसीलिए मैंने अब्बा के जाने के बाद हर हद पार कर दी। अब तो मेरी हरकतें अम्मा से भी बर्दाश्त नहीं होती थी। अम्मा अगर मुझे किसी बात से मना करती तो मैं टूट कर अम्मा को पड़ जाती और कहती कि ये मेरी ज़िंदगी है, इसे मैं जैसे चाहूँगी जीऊँगी। अम्मा आंसू के साथ रोती और मुझे कहती, तुम्हारे अब्बा ठीक ही कहते थे कि तुम्हारी डोर खींच लेनी चाहिए। आज तुम माँ को माँ नहीं समझती। इस तरह के आराम की कमाई खाने से तो बेहतर है कि काम से ज़िंदगी जी जाए। वाह भाई वाह माँ, आप भी कमाल करती हैं। आपके अंदर ये हलाल हराम का कीड़ा कहाँ से आ गया? अब्बा के जाने के बाद अब आप में अब्बा वाले जीन्स आते जा रहे हैं। अम्मा इतनी अच्छी ज़िंदगी जीने को दी है, सारी ज़िंदगी एक रोटी पर गुजारा करती आई हो। अब खुलकर अपनी ज़िंदगी को जी लो और मुझे भी जीने दो। इस तरह अगर रोक टोक करती रहोगी तो तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। मर्जी तो मैंने अपनी ही करनी है। मैंने अब्बा की कभी नहीं मानी तो तुम्हारी कहाँ से मानूंगी? बेहतरी इसी में है कि मेरी मानो तो ये मत देखो कि मैं ये रुपया पैसा कैसे कमा रही हूँ। बस ये याद रखो कि रुपया पैसा है तो हम लोग हैं। अगर ये रुपया पैसा ना हो तो लोग हमें नोच कर खा जाएं। भूखा मरे हम, किसी को कोई परवाह नहीं होगी। अम्मा मेरी बातें सुनकर खामोश हो जाती। मैं मज़ीद अपनी लगामें ढीली महसूस करती और बहुत ज़्यादा आज़ाद हो गई थी। इस दौरान मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं जिस रास्ते पर चल पड़ी हूँ उस रास्ते पर कभी बुरी तरह से मुंह के बल भी गिरूंगी। मैंने अपनी कहानी का अंजाम सोचा ही नहीं था। मेरी ज़िंदगी एक पतंग की तरह उड़ती ही जा रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ भी आएगा जो पतंग की डोर को काट फेंकेगा और मेरी ज़िंदगी एक कटी पतंग की तरह बनकर रह जाएगी। अमीरों के साथ खेलते खेलते मैं एक ऐसे गरीब लड़के के हाथ लग गई जिसने मेरी ज़िंदगी को किसी अपाहिज की तरह बनाकर छोड़ दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ज़िंदगी में कभी सच्ची मोहब्बत होगी और मुझे कभी सच्ची मोहब्बत ऐसा इम्तिहान लेगी। अब तक मैं कई लोगों की ज़िंदगी से खेलती चली आ रही थी। लोगों के घर तबाह करके मुझे दिली खुशी महसूस होती, लेकिन मैं सच में अपने अंजाम से नावाकिफ़ थी। ऐसे खेल में खेलते खेलते मुझे एक गरीब लड़के से सच्ची मोहब्बत हो गई। मेरे पास हासिल किया गया सब कुछ था, दौलत, पैसा, आसाइश और आराम। दुनिया जहाँ की हर चीज़ मेरे पास मौजूद थी। कमी थी तो सिर्फ एक ऐसे जीवन साथी की जो सारी ज़िंदगी खुशी खुशी मेरे साथ गुजारता। मैं लोगों के दिलों से खेल खेल कर थक चुकी थी। न जाने मेरे दिल में उस लड़के के लिए मोहब्बत कहाँ से जाग उठी। मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो गई थी कि मुझे कुछ होश नहीं रहा। मैं अपना सब कुछ उस पर निछावर करने के लिए तैयार थी। मैंने किसी बात की परवाह किए बगैर उस लड़के के साथ निकाह कर लिया और अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजारने लगी। राहिल बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसके खूबसूरत चेहरे के पीछे एक भयानक चेहरा छुपा था। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी। राहिल ने शादी से पहले मेरा एतमाद जीत लिया। उसने बहुत हुनरमंदी के साथ मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई को अपने नाम लगवा लिया। मैं तन मन के साथ अपना घर बार, अपनी सारी दौलत उस पर हार चुकी थी। मुझे एक रात की दुल्हन बनाकर मेरा इस्तेमाल किया। धोखे से सारी जायदाद अपने नाम लगवाता मेरा सारा रुपया लौट कर मुझे तन्हा छोड़कर चला गया। मेरा घर बार सब कुछ कौड़ियों के बहाव बेचकर वो हमेशा के लिए गायब हो गया। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे राहिल कहीं नहीं मिला। आज मुझे अम्मा की वो सारी बातें याद आती थी जो अम्मा अक्सर कहा करती थी कि ये दौलत जैसे हासिल किया एक दिन वैसे ही सब कुछ जाएगा। मेरे पास आई दौलत बिल्कुल वैसे ही मेरे हाथों से निकल गई जैसे मैंने धोखे से हासिल की थी। मुझे दोबारा से उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया गया जहाँ से दौड़ते मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारा था। मैं फिर से एक गरीब हैसियत की बन गई थी। मेरा सब कुछ मुझसे छीन गया। दर दर के धक्के खाने लगी। तभी मुझे अम्मा की बात याद आई। मैंने गाँव वापस जाने का इरादा किया। मुझे अपनी माँ से मिले 1 साल गुजर चुका था। मेरी माँ रोज़ाना मुझे फ़ोन करती और मुझे मिलने के लिए अपनी तड़प का इजहार करती, मगर मुझे अपनी माँ पर भी तरस न आता। अम्मा बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी और बीमारी से लड़ते लड़ते मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। गांव जाने पर मुझे मालूम हुआ कि अम्मा को इस दुनिया से रुखसत हुए 1 हफ्ता गुजर चुका है। मुझे किसी ने भी अम्मा की फौतगी की खबर तक नहीं दी। पूछने पर लोगों की धुतकार और बातें सुनने को मिली।
गांव के लोग मुझे नफ़रत की निगाह से देखने लगे। हर कोई मेरे करीब से ऐसे गुजरता जैसे कोई इंसान मुर्दा और गले सड़े गोश्त की बदबू सूंघते गुजरता हो। लोगों का ऐसा रवैया खुद के लिए देखते मुझे तकलीफ़ होती। अम्मा के हाथ का लिखा है ख़त गांव वालों ने मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, ये घर तुम्हारे माँ बाप का है, तुम भले इस घर में रह सकती हो, मगर कभी हम लोगों से किसी रहम की उम्मीद मत रखना। तुम जैसी औलाद से तो बेहतर इंसान है कि औलाद ही न रहे। तुम्हारे होने की वजह से तुम्हारे माँ बाप ने जो ज़िल्लत उठाई, जो शर्मिंदगी उठाई, तुम उसका इज़ाला कभी नहीं कर सकती। तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम इस घर में अकेले ज़िंदगी गुजारो। ऐसी कई बातें मुझे दिन रात सुनने को मिलती। मेरे पास पैसे न होते कि मैं एक वक्त का खाना खा सकती। मेरी ज़िंदगी किसी फ़कीर से भी बदतर हो चुकी थी। गांव का हर दरवाज़ा खटखटाती और एक वक्त खाने के लिए लोगों की मिन्नतें करती, लेकिन कोई भी मुझे एक वक्त की रोटी देकर खुश नहीं था। हर कोई मुझे 4 बातें सुनाता और मुझे धक्के देकर अपने दरवाजे से दूर हटा देता। मैं बहुत मुश्किल में आ गई थी। आज मुझे अपने अब्बा की बातें याद आ रही थी। मैं ज़ारो कतार रो रही थी और ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि मेरे वो सब गुनाह मेरे आगे आए। मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया था, अल्लाह ताला की दी गई ज़िंदगी को मजाक बना दिया था। ये सब कुछ उन्हीं कारनामों का नतीजा है। गांव आए मुझे कई दिन गुजर चुके थे और मैं कई दिन से पानी का गिलास पीकर गुजारा कर रही थी। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मैं घर की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती कि इन हालात में मेरे माँ बाप ने कैसे गुजारा किया होगा। मैं तो शहर में एक बहुत आलीशान ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे माँ बाप इस खस्ता हाल घर में भूखे प्यासे कैसे रह रहे होंगे, ये सोचती तो मेरी रूह तक कांप जाती। मैं खुद को कोसती। मेरा जी चाहता कि मैं अपना मुंह नोच लूँ। आईने में अपनी शक्ल देखकर मुझे खौफ आता। अब पछताए वे क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ये मिसाल मेरे ऊपर फिट बैठती थी। मुझे बहुत पछतावा था, लेकिन उस पछतावे का क्या फ़ायदा जब मैंने अपने ही खो दिए। मेरा हर रिश्ता मुझसे दूर हो गया था। मेरे पास इतने ज़्यादा रिश्ते नहीं थे। माँ बाप के सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं था। मैंने अपने सुख, अपनी ख्वाहिशात की भींट अपने माँ बाप को भी चढ़ा दिया। अम्मा की करीबी सहेली आबदा खाला के घर का पता लगाकर मैंने आबदा खाला के घर जाने का सोच लिया था। सोचा अम्मा की बहुत अच्छी सहेली थी, शायद मेरी कुछ इमदाद कर दे। मैं हिम्मत करते भूखी प्यासी, भूख से निढाल आबदा खाला का घर ढूंढने लगी। काफ़ी जिद्दोजहद करने के बाद मुझे आखिरकार आबदा खाला का घर मिल गया। दरवाज़ा खटखटाने पर जैसे ही आबदा खाला ने दरवाज़ा खोला, मुझे देखते हुए आबदा खाला बेसाख्ता थू थू करने लगी। मैं उनका ऐसा रवैया देखकर हैरान होने के साथ परेशान भी थी। इससे पहले कि मैं आबदा खाला से इमदाद की इल्तजा करती, आबदा खाला ने मुझे धक्के देकर ये कहते हुए घर से निकाल दिया कि तुम्हारी वजह से मेरी इतनी अच्छी सहेली इस दुनिया से चली गई। तुमने जीते जी अपने माँ बाप को बहुत दुख दिया। मलाइका, तुम सारी ज़िंदगी ऐसे ही रुल कर मरोगी। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। गाँव वाले भी मुझे इस तरह की बातें सुनाते थे। आबदा खाला भी मुझे उसी किस्म की बातें सुना रही थी। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। ये सब कुछ मेरा अपना ही बोया हुआ बीज था। ये वही फसल थी जो मैंने बोई थी और मुझे अपने हाथों से सूद समेत काटनी पड़ रही थी। हालात बद से बदतर हो चुके थे। आज मुझे कई दिन हो चुके थे मेरे पेट में अनाज का एक दाना तक नहीं गया। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे ये सब कुछ मेरे गुनाहों की सज़ा मिल रही है। मैं जाए नमाज बिछाते हुए भूखी प्यासी अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गई और ज़ारो कतार रो कर अपने किए गए गुनाहों की माफ़ी मांगने लगी। मैं जानती थी कि वो परवरदिगार बहुत रहीम है। जिस तरह उसकी रहमत वसी है, मेरे गुनाह इतने वसी नहीं थे। उसकी रहमत मेरे गुनाहों से कहीं बढ़कर थी। मेरा यकीन था कि वो मुझे माफ़ कर देगा। मैं ज़ारो कतार अपने परवरदिगार को मनाने में लगी हुई थी कि तभी अचानक कमरे में चारों तरफ धुआं उठता दिखाई दिया। मेरे कंधे काफ़ी वज़नी होने लगे। एक अजीब सी शक्ल मुझे दीवार के सामने खड़ी दिखाई दी। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी की परछाई हो। इससे पहले कि मैं उसे पहचान में लाती, अचानक से वो परछाई गायब हो गई और धुआं पूरे कमरे में गोल गोल मंडलाने लगा। कमरे का माहौल अजीब खौफनाक सा हो गया था। मुझे उस खौफनाक माहौल ने बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर दिया था। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर कमरे से बाहर ही चली जाऊं। भूख ने भी मुझे निढाल कर रखा था। मेरे अंदर ताकत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। कमरे का अजीब सा माहौल देखते हुए मेरा दिल घबराने लगा।
मैं इस कदर खौफज़दा हो चुकी थी कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। मैं डर के मारे बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश आया तो मैं अपने करीब एक खजूर पड़ी देख रही थी। खजूर देखते हुए मैं बहुत खुश हो गई। भूख ने मेरे अंदर एक तूफान बर्पा कर रखा था। मैं जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे खजूर खाने लगी। मैंने इतना भी नहीं सोचा कि आखिरकार मेरे पास ये खजूर आई कहाँ से। मेरे सामने पड़े एक दूध के गिलास ने भी मुझे ये सोचने की मोहलत ही नहीं दी कि आखिरकार ये सब कुछ कहाँ से आया है, कौन रख कर गया है। बंद दरवाजे से आखिर अंदर कौन आ सकता है। मेरे अंदर ऐसा कोई भी सवाल नहीं था। अभी तो सिर्फ मैं भूख के आंसू मजबूर होकर खाने में मसरूफ़ थी। पाँव तले से ज़मीन तो तब निकली जब मैंने इस बात को महसूस किया कि मैं इस कदर खजूर खा गई हूँ कि मेरी भूख ही मिट गई है। लेकिन खजूर थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खजूर में इजाफा ही होता जा रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा खजूर खा चुकी थी तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। तभी मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन है? कौन है यहाँ? मैं कहती हूँ कौन है, सामने आओ। मेरी घबराई आवाज़ सुनकर भी मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन किसी की मौजूदगी का एहसास मुझे मुसलसल हो रहा था। मैं घबराते हुए अपने इर्द गिर्द देखने लगी। मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं सहमी हुई जायनमाज़ पर बैठी रही। अचानक से मेरे सर पर मंडलाता हुआ गहरा धुआं एक लंबे चौड़े लड़के की शक्ल में तब्दील होने लगा। उस धुएं से बनता वजूद देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं खौफ के मारे थर थर कांपने लगी। वो लड़का मेरे करीब आया और मुझसे कहने लगा, डरो मत, मैं एक नेक दिल जिनज़ादा हूँ। मैं कतन तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया, बल्कि तुम्हारी पुकार पर तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया हूँ। इसलिए मुझसे डरो मत। तुम्हें अपने किए गए गुनाहों पर नदामत है, शर्मिंदगी है। तुम्हारा रब तुम्हें ज़रूर माफ़ करेगा। गोया तुम्हारे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, मगर सच्चे दिल से की गई तौबा को परवरदिगार ज़रूर कबूल करता है। सुबह होते ही अपने माँ बाप की कब्र पर जाना और गिड़गिड़ा कर अपने माँ बाप से माफ़ी मांगना। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें माफ़ कर देंगे। उनकी रूहें उस वक्त खुशी महसूस करेंगी, क्योंकि तुम्हारी तौबा को देखते हुए तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हें माफ़ कर दिया होगा। मैं उस नेक दिल जिनजात की बातें सुनते पहले तो घबरा रही थी। खौफ के बारे मेरी आवाज़ झलक में ही अटक कर रह गई। लेकिन जैसे ही मेरे माँ बाप का जिक्र हुआ, मेरी आंखों में आंसू भर आए। ये आंसू पछतावे के थे। अब मेरे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं था। मैं ज़ारो कतार रोने लगी और वहीं पर जाए नमाज पर गिरकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगी। अचानक से मैंने इर्द गिर्द देखा तो वो जिनज़ादा जा चुका था। मेरी नज़र उसे मुसलसल तलाश कर रही थी, लेकिन वो मुझे कमरे में दिखाई नहीं दिया। मैं जायनमाज़ पर ही सहमी बैठी रही। न जाने कब मेरी आँख लग गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने इर्द गिर्द बहुत सारी खजूरें पड़ी देखी। मैं जिनज़ादे की दी गई एक खजूर खाकर अपने अंदर तब्दीली को महसूस कर रही थी। मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया, और मैं इस कदर ताकतवर हो चुकी थी, वो भी महज एक खजूर की वजह से। तभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये उसी जिनज़ादे की दी गई खजूर थी। उसी की वजह से आज मेरी आंखों के सामने खजूरों का ढेर लगा हुआ था। उसकी दी गई खजूर से न सिर्फ मेरी भूख मिटी थी, बल्कि मेरे अंदर एक जादुई ताकत भी आ गई। वो ताकत ऐसी थी कि मैं जिस चीज़ को भी हाथ लगाती उस चीज़ में इजाफा होने लगता। मगर घर के किसी सामान को हाथ लगाती तो वो सामान बढ़ता चला जाता। खाली बर्तन को हाथ लगाती तो खाली बर्तन राशन से भर जाता। मेरे अंदर एक अजीब सी कशिश पैदा हो चुकी थी, और इस ताकत और कशिश की वजह से मैं बेहद खुश थी। अब मैं लोगों की मदद करना चाहती थी। एक वक्त वो था जब मैं दौलत की ताकत रखती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने अलावा किसी का एहसास नहीं किया। और एक वक्त ये था कि मैं एक रूहानी ताकत रखती थी। उस रूहानी ताकत के बलबूते पर मैं उस मजबूर और लाचार की मदद करने के लिए तैयार थी, जो भी मेरी तरह से दर दर की खाक छान चुका था। दरवाजे पर दस्तक हुई। एक फ़कीर की सदा पर मैंने दरवाज़ा खोला। उसने अपना खाली कटोरा मेरे आगे बढ़ाते हुए कहा, इस खाली कटोरी को भर दो। मैं उसकी सदा सुनकर हैरान थी। उसके सवाल पर मैंने जैसे ही उस कटोरे में पड़ा 10 रुपए का नोट उठाया और वापस उसके कटोरे में रखा, वैसे कई नोट उसके कटोरे में अचानक से आ गए और उसका कटोरा उन नोटों से भर गया। मैंने उसे वो कटोरा उसके हाथ में थमाते हुए कहा कि लो, खुदा ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। फिर अचानक से वो फ़कीर उसी जिनज़ादे की शक्ल में ज़ाहिर हुआ। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था।
مجھ سے کہنے لگا، یہ تمہارا پہلا امتحان تھا، تم اپنے پہلے امتحان میں کامیاب ہو چکی ہو۔ ملائکہ، اب تم گاؤں کے ہر گھر میں جاؤ، جا کر دروازہ کھٹکھٹاؤ، ان کی مدد کرو، اللہ تم سے راضی ہوگا۔ میں نے گھبراتے ہوئے جن ذات سے کہا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ گاؤں والے مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں، وہ کیوں کر مجھ سے مدد لیں گے؟ جن ذات مسکرانے لگا اور مجھ سے کہنے لگا، آج پورا گاؤں اپنی پریشانی تم پر ظاہر کرے گا اور تم سب کی پریشانیوں کو دور کرو گی، اس طرح تمہاری کھوئی ہوئی عزت تمہیں واپس ملے گی۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران تھی، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جن زیادہ میرے ساتھ ہے، میں گاؤں کے ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ جیسے ہی میں نے پہلے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلنے پر کسی نے مجھے برا بھلا نہیں کہا۔ میں نے ویسا ہی سوال کیا جیسا مجھے جن زادے نے سمجھایا تھا۔ میرے سوال کرنے پر میرے سامنے کھڑی ایک عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میرا شوہر بہت بیمار ہے، میرے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے اس کی پریشانی کو غور سے سنا اور اس سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایک نوٹ ہے؟ کوئی بھی سکہ یا نوٹ ہو تو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ جلدی سے میری بات سنتے ہوئے اپنے گھر کے اندر جانے لگی اور کچھ ہی دیر میں 10 روپے کو پھٹا ہوا نوٹ لے کر میرے پاس حاضر ہوئی اور مجھ سے کہنے لگی، میرے پاس تو سوائے اس پھٹے نوٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اس نوٹ کو ہاتھ میں پکڑا، جنزادے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی آنکھیں بند کی اور چند ہی منٹوں میں اس پھٹے ہوئے نوٹ سے 10 روپے کے کئی نوٹ اس عورت کی ہاتھ میں تھما دیے۔ وہ اس قدر زیادہ نوٹ دیکھتے ہوئے بے حد خوش ہوئی، مجھے ڈھیر ساری دعائیں دینے لگی۔ اس کے منہ سے نکلتی دعائیں آج مجھے کسی پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ وہی زبان جو کل تک مجھ پر انگارے برسا رہی تھی، آج میرے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں پورے گاؤں میں ملائکہ مائی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ گاؤں کیا، شہر کے لوگ بھی مجھ سے مدد طلب کرنے آتے اور میں اللہ کی رضا کے لیے سب کی ایسے ہی مدد کرتی۔ آج میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ میں نے اپنی زندگی اپنے رب کی راہ میں وقف کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنے میں گزار دی۔ اپنی زندگی سے مجھے یہی سبق حاصل ہوا، جتنا پروردگار نے عطا کیا ہو انسان کو اسی میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ زیادہ کی لالچ اچھے بھلے انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ آپ سب کو اپنی کہانی بتانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا، جو غلطیاں مجھ سے ہوئیں وہ کسی اور سے نہ ہوں۔ جن گناہوں کی وجہ سے میں نے اپنے پیاروں کو کھویا، میری طرح کی سوچ رکھنے والی سب بیٹیاں اس نقصان سے بچ جائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔